Hello and welcome everybody. Today we are going to discuss a topic that is more valuable than money, more precious than gold, and more important than success. It is the health, the ultimate treasure. If you have all the money, suppose you have all the money in the world but no health, can you truly be happy in your life? The answer is no. We often run behind studies, marks, career, success, but we forget one important thing. Without good health, nothing else matters. And health is not just about being free from illness, it means a healthy body, it means a peaceful mind, and a positive lifestyle, a very important part, which is important to discuss in the present context. Because nowadays we don't see diseases like polio, smallpox, but nowadays we see diseases like blood pressure, diabetes, depression. In today's fast moving world, we are eating processed food. Processed food means, an example of a processed food will be Maggi. We are spending hours and hours on screens. We are sleeping late. We are ignoring exercise. And slowly we are losing our most valuable treasure, which is the health. A very powerful line, health is wealth. Because when you are healthy, you can study better, you can achieve your goals, you can live a happy and energetic life. But when health is not good, everything feels difficult. So today, through this session, we will also understand why it is important to eat healthy, to exercise daily, to take care of our body and mind. Because at the end of the day, health is not an expense, it is an investment. Let us begin our session with some basic discussion. Talking about exam, from this topic, we will definitely get one question in Sainik School. We will get one question in Rashtriya Military School and one question in Jawahar Navodaya. इसके अलावा if you are giving the scholarship exam or if you give the Olympiad exams, there also you will see question from the health. Now the catch here is you will get a question from health from both new NCERT as well as old NCERT. New NCERT, they have directly given the topic named health. In the old NCERT, this topic was spread over across two topics. One among them was microorganisms and another was again about health. So as we proceed, we will discuss. Apart from this, all the old NCERT topics are available. You can go and watch the videos. We have also done many questions on that basis. It will help you. Now this year the challenge is कि आपको old NCERT भी पढ़नी है, आपको new NCERT भी पढ़नी है. न्यू एनसीईआरटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे तो डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओल्ड एनसीईआरटी भी हमें पूछा जा सकता है, स्पेशली आरएमएस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अब इस साल आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात आ गई है कि आपको क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, 7th की ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, 8th की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, ये सारे आपको करने हैं, जिसमें से ओल्ड के सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं. तो वो अगर आप एटलीस्ट एक रिवीजन के हिसाब से आप करेंगे तो कर सकते हैं. अदरवाइज वी विल ऑल्सो कवर इट.
और न्यू तो हम सारे करने ही वाले हैं और इन डिटेल करने वाले हैं. लेट अस नाउ मूव अहेड एंड बिगिन आवर सेशन. Let us begin with some basic points. How does your body respond to an infection such as common cold? Generally, common cold is a seasonal phenomena. Moreover, we rarely see cases of smallpox or polio these days. Now, such kind of diseases are rare. You will hardly hear about these diseases. But the more prominent diseases are diabetes and heart problems. Now, what is the reason? Could climate change lead to new type of diseases? क्या climate के बदलने से नए तरीके की बीमारियां हो सकती हैं? New type of diseases, when I say, we mean that there are also emotions based diseases. How do emotions like stress or worry affect us and make us sick? Yes, this is also one of the growing reason people are becoming sick. Why do some groups of people get affected more than others during diseases or outbreaks? ये भी आपने एक चीज देखी होगी कि अगर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो कुछ लोगों पर वो ज्यादा इंपैक्ट करती है, कुछ लोगों पर कम इंपैक्ट करती है. गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कोविड और द कोरोना वायरस, there were some people who were affected, there were many deaths in millions actually, and there were some who were unaffected. So how does it work out? How does it happen? We are going to discuss today, but before that, let us talk about the health. It is more than not falling sick. सिर्फ ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ रहे तो that is called health. What do the news clippings on the notice board tell you about people's health in our country? That is, being healthy is not just not having diseases. ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं. There are still many other. Let us understand that what is the definition they are giving about health. अब तक तो हम यही समझते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ. But they have given the definition which is important. Health also includes feeling good physically, staying positive, and having strong relationships. A healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset, and enjoys social life. Social life means हमारा relationship भी होना चाहिए, हमें अच्छे से लोगों से मिलना जुलना भी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फिजिकली तो आप हेल्दी हैं लेकिन आप हमेशा एक रूम में रहते हैं, आप किसी से बातचीत करना नहीं चाहते हैं, आप उसके कोई बात नहीं करता है, आप भी किसी से बात नहीं करते. सो दैट इज ऑल्सो द एस्पेक्ट देयर. लेट अस नाउ एक्सप्लोर what it truly means to be healthy. तो एक्चुअली हेल्दी होने का क्या मतलब है? Now talking about the book, यहाँ पर एक उन्होंने छोटा सा एग्जांपल दिया. grade 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी. एक grade 8 का स्टूडेंट है, वो एक नई सिटी में जा चुका है. विथ नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरमेंट एंड बिजी पेरेंट्स ही फेल्ट लोनली. अभी न्यू सिटी में गया है, कोई दोस्त नहीं है, उसे अकेलापन फील हो रहा है. टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया. अकेले होने के साथ साथ उसके सामने एक ऑप्शन है कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करूं, तो उसने मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया. बट दिस मेड हिम फील वर्स. और इससे अब उसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए. क्या प्रॉब्लम्स हुई? लेट्स सी. ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स. अब उसने दोस्त बनाना बंद कर दिया. ही हैड हेडेक्स, he lost weight, and he could not sleep well. Now these are the common symptoms you will see if you will not meet or you will not socialize. You will spend more time on your mobile phone, on social media. ये सबसे पहले हमें दोस्ती करने का और मन नहीं करेगा किसी से. बहुत ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड करेंगे, हेडेक की प्रॉब्लम होगी, वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, नींद टाइम पे नहीं आएगी. द डॉक्टर एडवाइज लेस टाइम स्क्रीन एंड मीटिंग अ काउंसलर. डॉक्टर ये ने बोला कि आप स्क्रीन टाइम कम करिए और काउंसलर से मिलिए. द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ. नाउ इन दिस एंटायर सिचुएशन सी इट इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज उसे नहीं हुई है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज उसे नहीं हुआ है, उसे कोई डेफिशिएंसी डिजीज भी नहीं हुआ है. तो उसे हुआ क्या है? व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स? How did his habit and surroundings affect his well-being? कैसे उसको हेल्थ प्रॉब्लम हुई? इस पे एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
WHO। वैसे तो पॉइंट बेसिक है पर पूछा जा सकता है। अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कौन है इसके हेड अभी? एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड इट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। हेल्थ को इन्होंने डिफाइन किया हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में पूछ लेंगे और तीनों चारों ऑप्शंस दे देंगे कि फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सोशल भी है और एब्सेंस ऑफ डिजीज भी होना नहीं चाहिए कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को ही हम हेल्दी नहीं बोलते। तीनों चारों ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह के जितने भी डेफिनेशंस हैं उसमें चारों पांचों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि फिजिकल वेलबींग भी होना चाहिए, मेंटल वेलबींग भी होना चाहिए, सोशल वेलबींग भी होना चाहिए और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को ही हम हेल्दी होना नहीं बोलेंगे। Antonio Guterres, he's the United Nations head. Tedros Adhanom, he is the head of World Health Organization. वैसे तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है लेकिन RMS में शायद पूछ सकते हैं। A healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situation. Healthy person को डिफाइन किया हुआ है कि अलग अलग तरह के काम कर सकता है, अलग अलग सिचुएशन में वो मैनेज कर सकता है। हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स। पीयर मतलब उनके अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ एक बेटर तरीके से एडजस्ट कर सकता है एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। दिस लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द हेल्थ। मूविंग फर्दर देन दिस, आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स following Dinacharya, the daily routine, and Ritucharya, the seasonal routine. This helps maintain this balance. Eating fresh, wholesome food suited to one's prakriti. Prakriti means nature. They're defining it as body constitution. That is essential. तो कह रहे हैं कि हमें एक बेटर अच्छा एक खाना खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, हमें ग्रेन्स लेने चाहिए जिससे हमारे बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है वो ठीक रहे। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लेनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ऐसा चीज इसमें कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है पर हाँ उठाकर क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि बॉडी के वेलबींग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्लेनलीनेस ज़रूरी है, स्लीप ज़रूरी है, काम माइंड ज़रूरी है। और इसको कैसे हम पा सकते हैं? इसको योगा एंड मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की इन्होंने बात की कि माइंडफुलनेस अगर अचीव करना है, काम माइंड अचीव करना है तो डाइट के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। JNV में हो सकता है इस पर आपको एक आधा क्वेश्चन कोई साइड से बना दे। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? नाउ स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तीनों चारों पॉइंट है, कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इसमें कम रहेंगे। गेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ कि हेल्थ के क्या क्या एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट दिए हुए, मेंटल दिया हुआ है, फिजिकल दिया है, सोशल दिया है। ये तीनों ही हमारे प्रॉपरली बैलेंस्ड होने चाहिए। अब क्या क्या इनको करना है बैलेंस करने के लिए? लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक। दे से प्रॉपर स्लीप इज इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज इंपॉर्टेंट एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो ये तो इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें हमारे को हेल्थी बनाएंगी, पर और एक्टिविटीज़ क्या हम कर सकते हैं दैट ऑल्सो दे हैव डिस्कस्ड। ये प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हो सकता है इस पर क्वेश्चन बना दें क्योंकि जनरली हेल्थ टर्म से हम ऐसे समझते हैं कि हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स तो हो सकता है शायद आप लोग इस चीज़ को मिस कर दें, प्रॉपर स्लीप को शायद आप मिस कर दें या पॉजिटिव एटीट्यूड को आप लोग मिस कर दें। तो ये भी 3 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। Let's list some good habits that your parents, teachers or elders often encourage you to follow. जैसे एक एक्टिविटी है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, कवर करना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आगे देखते हैं।
तो बता रहे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके एल्डर्स टीचर्स आपको बताते हैं करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. तो इसमें से कितना आप ऑलरेडी कर रहे हैं. विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, एड टू द लिस्ट. तो एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है, क्या दी हुई देख लेते हैं. कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन. ईट अ हेल्दी. पर्सनल हाइजीन से आप अपना हैंकरचीफ वगैरह मेंटेन करिए. यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आप अपने हाइजीन से, साफ सफाई का ध्यान आप रखिए. ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एवरीबडी इज मेंशनिंग कि अपने फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें हर तरह के डाइट्स को लेना चाहिए. एक्सरसाइज रेगुलरली. मेक टाइम टू रिलैक्स एंड मेडिटेट एवरी डे. तो ये 4 बताए हुए हैं. इसके अलावा अगर आपको खुद से भी कुछ ऐड करना है सो यू कैन गो अहेड एंड ऐड समथिंग इन दिस. So they have represented this through a diagram here. You can see eating a balanced diet, staying physically active to do some exercise, saying no to smoking or alcohol, these are poisons, getting enough sleep and manage stress. तो ये योगा मेडिटेशन वगैरह अपना बताया हुआ है. Now what are the activities we should not do? Now think about habits that are not good for your health. Add more to the list below. ये उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है और अगर आपको अपने से भी कुछ ऐड करना है तो बता रहे हैं वो कर सकते हैं. एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में एक साइड में एक बॉक्स बनाकर बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स. ईटिंग फास्ट फूड, स्पेशली मैगी खाना, बर्गर खाना, पिज्ज़ा खाना एंड अदर जंक फूड एवरी डे. स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग एनफ स्लीप. स्किपिंग मील्स स्पेशली द ब्रेकफास्ट. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने बताई हुई हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए. एग्जाम में इस पर हो सकता है शायद क्वेश्चन पूछा जाए, पर इस टॉपिक में और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हमको क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. मूविंग फर्दर, डिस्कस योर फाइंडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर. फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन and in the discussions you may have realized that our health depends on many factors. हमारी जो हेल्थ है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. क्या फैक्टर्स है देख लीजिए. फैक्टर्स इंक्लूड अवर लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मीन्स हाउ वी लिव एंड अवर एनवायरमेंट विच इज अवर सराउंडिंग्स. Now further they say for maintaining a healthy lifestyle we have to eat a balanced diet with plenty of fruits, vegetables and whole grains. We have to avoid processed, fatty or sugary food and drinks. Moving further than this, we have to stay physically active by playing outdoors, walking, running, cycling or exercising. We have to limit screen time and spend more time in nature. तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इनको कम यूज़ करने के लिए बताया है और थोड़ा सा नेचर पे मतलब बुक्स रीडिंग वगैरह करना, इसके साथ आप ज़्यादा जाइए. फर्दर दे से गेट एनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर. प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लाइक प्राणायाम रेगुलरली. से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज थिंग्स लाइक टोबैको, ये सारे पॉइजन्स होते हैं, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स. तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है. हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमें प्रॉपर रेस्ट करना है, हमें मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स करना है. सिंपल मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम उन्होंने बताया हुआ. और नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज अ पार्क एंड दिस इज अ वेरी क्लीन पार्क. एक साफ सुथरा पार्क देख सकते हैं जिसमें सारे बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, कोई मच्छर आपको इसमें नहीं दिखाई देंगे, कोई इसमें आपको अनवांटेड एलिमेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे. ऑन द अदर हैंड यू लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज ऑल्सो अ पार्क सराउंडेड बाय फैक्ट्रीज. दिस इज लॉट ऑफ गार्बेज. और इसमें अगर आप जाएंगे खेलेंगे तो आपको कई यहाँ पे मच्छर और इंसेक्ट्स और आपको दिखाई दे रहे हैं. तो इट कैन एक्चुअली लीड टू अ सम काइंड ऑफ डिजीज. आपको यहाँ पर आप शायद जाना पसंद ना करो. सो इन जनरल भी हम क्या चाहते हैं, हम क्लीनलीनेस वाले इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड शोन. तो पहला जो हमने प्ले ग्राउंड दिखाया था जो साफ सुथरा था, इट इज़ क्लीन, वेल मेंटेन्ड एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. तो हर कोई इसी तरह के प्ले ग्राउंड में जाना चाहता है.
On the other hand, in the second image, we have seen the playground which is polluted, dirty, unhygienic, and full of flies and mosquitoes. Nobody would like to go in such a playground. People living in such areas may fall sick more often. तो इस तरह के सराउंडिंग्स अगर आप मेंटेन करेंगे तो भी आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. फर्दर दे टॉक अबाउट गुड हैबिट्स इन एडिशन टू इनकलकेटिंग. इनकलकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, किसी चीज़ को अपने में शामिल करना, इनकलकेट करना. गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने अपना डाइट मेंटेन कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, योगा कर लिया, बुरी चीज़ों से दूर हो गए तो भी सब कुछ हो गया. हमें अपने सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना है. हैव यू एवर फाउंड इट इज़ हार्ड टू ब्रेथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट. आपने देखा होगा, अभी लोग दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत डस्ट है वहाँ पर. मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वहाँ पर बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो रही हैं, रेस्पिरेशन रिलीजेज डिजीजेज हो रही है. दिस इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. कि हमें एक साफ हवा और साफ पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट दे से इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग और एस्थमा. सिटीज़ में काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं, इसकी वजह से वहाँ पर एयर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है. द एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प्स अस टू नो हाउ क्लीन द एयर इज़. एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की टर्म आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. हर जगह आप ये टर्म सुन रहे होंगे जहाँ पर भी एयर के क्वालिटी की बात चल रही है या एयर पोल्यूशन की बात चल रही है. अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर. मूविंग फर्दर फ्रॉम हियर, but health is not only about the body. Our feelings and relationships matter too. Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. तो बता रहा है कि सिर्फ खाने से और एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें मेंटली फिट रखते हैं. अगर हम अच्छा खा रहे हैं और एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बहुत क्लीनलीनेस सराउंडिंग्स है, लेकिन अगर हम अकेले हैं या अपसेट हैं तो भी हमारा मूड जो है वो अपसेट हो जाता है. एंड दिस ऑल्सो काउंट. स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प्स कीप आवर माइंड हेल्दी टू. सो दिस इज ऑल्सो द एस्पेक्ट दे आर फोकसिंग ऑन. फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ हंसना, उनके साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करना, दिस विल ऑल्सो बी ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कीपिंग आवर माइंड हेल्दी. इस पर एग्जाम में पूछे जाने के तो कुछ खास चांसेस नहीं होते हैं. मूविंग फर्दर, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी. व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड. तो ये बता रहा है कि हमारी बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है हेल्दी रखने का. अगर हमें अनवेल होने की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ तो हमारे अंदर जो शायद प्रोग्रामिंग है वो मे भी शायद थोड़ी सी हिली हुई. वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस, डिजीनेस मतलब थकान लाना, साइंस लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल. तो कैसे पता चलेगा हम अनवेल हैं? ये सारे उसके सिम्टम्स होंगे. हमें थकान होगी, या हमें टायर्डनेस होगी, डिजीनेस होगी, फीवर जैसा थोड़ा फील होगा. नेक्स्ट इज दे से अ सिम्टम इज व्हाट वी फील. सिम्टम क्या होता है? हमें क्या फील हो रहा है. लाइक पेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्टम. क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सिम्टम क्या होता है? सिम्टम होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं. जो हम फील करते हैं उसे हम सिम्टम कहते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? पेन हो गया. वाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर. तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से पॉइंट में सिम्टम और साइन को डिफाइन किया हुआ है. सिम्टम मतलब हमें कैसा लग रहा है, साइन मतलब क्या है? साइन मतलब हम कैसा जो फील कर रहे हैं उसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीवर है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा हाई हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ें जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको देखा जा सकता है, उसे हम साइन कहेंगे, और जो हम फील करते हैं उसको हम सिम्टम कहते हैं. नाउ दीज हेल्प डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल. तो इसी से डॉक्टर पता करते हैं कि हमें क्या, किस रीज़न से हमें अनवेल फील हो रहा है. Talking about the diseases, what are the causes and types? A disease is a condition that affects the normal working of the body or mind. It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly.
Some diseases are caused by germs like bacteria, virus, fungi, these all are microorganisms, worms, or even by protozoa. Protozoa, all of these are single celled organisms. अलग अलग तरह के डिजीजेस हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द कोर पार्ट. सबसे पहले उन्होंने डिजीज को डिफाइन किया और अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स के नाम, आगे इनसे होने वाली बीमारियां भी इन्होंने एक चार्ट के थ्रू मेंशन की हुई हैं. दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. पहले ये टर्म टेक्स्ट बुक में नहीं था, इस साल ऐड किया है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है. या विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस pathogens, so disease causing organism. Other diseases may result from poor nutrition or an unhealthy lifestyle. तो ये जो infectious disease हैं ये किससे होती हैं? ये पैथोजन से होती हैं. क्वेश्चन हमें पूछा जाने के चांसेस हैं, माइनर है पर पूछे जा सकते हैं. मूविंग फर्दर from pathogens and diseases, some diseases last for a short time while others can continue for a long time. The diseases which continue for a long time requires a regular treatment and care are called chronic diseases. We will discuss this as we will proceed in this chapter. Diseases can be grouped into two major types based on their causes and how they are spread. Again, जो old NCERT थी उसी के पॉइंट को इन्होंने आगे बढ़ाया है. Now here in this picture you can see the various ways in which the diseases can be spread. First you can see that from an infected person through a direct contact, by air, by indirect contact, by food, by mosquito or insects, by rabbit or some animal. These are the common methods of transmission of diseases. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, एयर से हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्लोथ्स वगैरह आपने यूज़ कर लिए, फूड वगैरह आपने मॉस्किटो, इंसेक्ट्स और ये सारे एनिमल्स के थ्रू भी ये सारे जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, ये स्प्रेड हो सकते हैं. ओवर द टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको भी समझनी है कि टेक्स्ट बुक में जितने भी इमेजेस दिए हुए हैं, जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली अगर आप सैनिक स्कूल टारगेट कर रहे हैं तो जितने भी डायग्राम्स टेक्स्ट बुक में हैं उनके नीचे या साइड में जितनी भी स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. इवन दो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी है वो बेसिक दी हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है यार, ये आप इन जनरल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके लिए आपको बहुत कोई ख़ास चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट माई पॉइंट हियर इज़ कि टेक्स्ट बुक में जितने भी इमेजेस, जितने भी पिक्चर्स, डायग्राम्स दिए हैं उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Now let us move on to the two types of. The first is non-communicable diseases. Some diseases like cancer, diabetes or asthma are not caused by pathogens. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड नहीं होते. पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, तो उन्होंने बैक्टीरिया और वायरस ना लिखकर पैथोजेंस लिख दिया. पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग जितने भी एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजेंस बोला जा रहा है. तो ऐसी डिजीजेस जो पैथोजन से नहीं होती एंड दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल एस्थमा है, डायबिटीज है. These are lifestyle diseases, diet diseases. They say they are usually linked to lifestyle, diet or environment. Coming from non-communicable to communicable diseases, the diseases caused by pathogens are called communicable diseases. They can spread from one person to another. Some examples of communicable diseases are typhoid, dengue, flu which is our common cold, chickenpox and COVID-19. तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे थ्रू वेरियस एजेंट्स जो स्प्रेड होंगे, दे आर द
communicable diseases. In recent years, non-communicable diseases, short form में NCDs लिखा है, like diabetes, heart disease and cancer, they have become more common in India. अब आप देखेंगे कि communicable disease का जो रेट है वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन non-communicable diseases बढ़ते ही जा रहे हैं. This is happening because of changes in how people live, such as eating more processed food. One of the primary reason of high blood pressure, heart related diseases, even cancer. Processed food mostly plastics में पैक किए जाते हैं. प्लास्टिक्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स जो कि बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स हैं. अब बहुत लंबे समय तक आप प्लास्टिक में कोई खाना, जो कि आप देखिए, आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं मोस्टली वो प्लास्टिक में स्टोर होता है. यू टेक अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैगी, वो प्लास्टिक में पैक किया जाता है. या आप कोल्ड ड्रिंक देख लीजिए, वो प्लास्टिक में पैक किया जाता है और उसके माइक्रो प्लास्टिक्स ओवर द टाइम उस फूड पार्टिकल में वो मिक्स होते रहते हैं. इवन दो बहुत छोटे होते हैं, बट देन व्हेन दे गो इनसाइड आवर बॉडी दे कैन ट्रिगर आवर सिस्टम. वो हमारे सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है. तो प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैक्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, मैगी हो गया, जितने भी पैक्ड आइटम्स है, ये इनसे हमें दूर रहना है. गेटिंग लेस एक्सरसाइज, दिस इज अनदर मेजर रीजन. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपने बॉडी में से बहुत सारा स्वेट निकाल देते हैं और उसी के थ्रू जो कूलिंग एक्टिविटी है, स्वेटिंग इज अ कूलिंग एक्टिविटी ऑफ बॉडी, तो उसी के थ्रू काफ़ी सारे हमारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं. एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स, अगर आप बहुत ज़्यादा आप लंबी लाइफ जी रहे हैं तो उससे भी हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकते हैं. Now, one another important point. Today, most deaths in India are caused by NCDs. आज जितनी भी डेथ इंडिया में हो रही है ये NCDs से हो रही है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स विल हेल्प अस टू नो हाउ डिजीज इज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम. तो अभी इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम समझ जाते हैं कि ये डिजीजेस क्या हैं और कैसे ये स्प्रेड होती हैं, देन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. मूविंग फर्दर इन दिस, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड. ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस बता रहे हैं आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में. बिल्कुल भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा कि क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजेंस के अलावा किसी और से हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं. सी अंडरस्टैंड कि अब हमारा ये जो आपका जो पेपर होने वाला है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं शीट, इसके वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए. तो ये जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक तो टॉपिक्स इस साल बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है. आप ओल्ड NCERT से कंपेयर करोगे तो बहुत कम टॉपिक्स कर दिए, लेकिन जितने भी कर दिए उनके थोड़े पेजेस बढ़ा दिए, तो डबल पेजेस कर. लेकिन लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए. RMS टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ज़्यादा कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सैनिक स्कूल में डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठाकर दे देते हैं, पर RMS में कंसेप्चुअल. एंड इन दोनों में इससे भी एक लेवल ऊपर जो है वो जवाहर नवोदय है. जवाहर नवोदय में एक स्टेटमेंट देकर 3 ऑप्शन दे देंगे, A and B, B and C, A and C. सो दैट विल बी स्लाइटली मोर, आई विल से मेमोरी ओरिएंटेड की चीज़ें याद भी होनी चाहिए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. These pathogens can enter our body. ये बता रहे पैथोजन से कम्युनिकेबल डिजीज होती है. दे एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर. तो ये जो पैथोजेंस हैं ये अपना अगर पाथ बना लेंगे तो ये हमें भी उससे कंटेमिनेट कर देते हैं. Further they say, but how do these pathogens spread from one person to another? One common way, through air. When an infected person coughs or sneezes, or through direct contact like shaking hands, or indirectly by sharing personal items, जैसे आपने किसी का हैंकरचिफ, किसी के जैकेट, किसी के कपड़े अगर आपने यूज़ किए तो उससे भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं. So these pathogens, they can spread directly from an infected person through cough or sneezing, or indirectly through shaking hands or by sharing some personal items like handkerchief or clothing material of an infected person. Some of the communicable diseases spread through contaminated drinking water or food also. Some pathogens are also spread by insects like mosquitoes and house flies. These insects are called vectors. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इस पूरी शीट में जो भी पार्ट ग्रीन में है
उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर देखोगे, उसमें भी ये ग्रीन में है। तो इन पॉइंट्स का खास ध्यान आपको रखना है कि डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फर्दर फ्रॉम हियर, by understanding how these diseases spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. Let us find out how these communicable diseases spread and how we can prevent them. So causative agents we have already seen through the diagram. That will be important for you. Let us have this is a basic chart, and this chart is important. You have to learn this chart. इस chart पर इस साल की जो एग्ज़ाम हुई उस पर भी क्वेश्चन थे, और अभी अब कुछ साल तक तो ज़रूर आएंगे। और ये चार्ट ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, इसमें इस बार थोड़ा और डिटेल कर दिया। द फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इट्स कॉज्ड बाय वायरस, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द सिम्टम्स आर नेशल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कफ एंड बॉडी एक। सिम्टम्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा। Preventive measures will be washing hands frequently, not sharing personal items, covering the mouth and nose while coughing or sneezing. Next is chicken pox. This is causal agent is a virus, affects the respiratory tract and skin. ये पूछा जा सकता है which body part is affected. Symptoms और preventive measures नहीं पूछे जाएंगे. Mild fever, itchy skin, rashes and blisters. Preventive measures includes complete isolation of the patient, covering the mouth and nose, and vaccination. Next is measles, again caused by virus, affects the skin and respiratory tract. Symptoms include fever, sore throat, reddish rashes on the neck, ears, and other part of skin. Isolation of patient, covering the mouth and nose, maintaining good hygiene, and vaccination. Next is tuberculosis. Tuberculosis, surprisingly, it is caused by a bacteria, Mycobacterium tuberculosis. टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया है तो नहीं पूछा जाएगा. It affects the lungs. Symptoms are cough, fever, fatigue. Fatigue मतलब tiredness, loss of appetite and night sweats. Preventive measures include avoiding close contact with TB infected people, covering the mouth and nose, maintaining good hygiene, and getting vaccinated. Please be mindful that this chart is going to be very, very important. It's not ending here. Further, diseases spread through contaminated water and food. First is hepatitis A, spread by virus, causal agent, affects our liver. क्वेश्चन पूछा गया है पहले, आगे भी पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए में कौन सा बॉडी पार्ट हमारा, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है. इट्स इंपॉर्टेंट. सिम्टम्स नहीं पूछे गए हैं पहले, आगे भी चांसेस कम है, तो इसको बस आप ध्यान में रखिए. बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं कि पूरा बैठ कर आप इसको लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज बाय हार्ट कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया. फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, pain in the upper right abdomen. Prevention is drinking boiled water and vaccination. Next is cholera. It's caused by bacteria, Mycobacterium cholerae. Affects our intestine. Now, the moment it affects intestine, remember the chapter digestion. Now, the digestion process actually completes in intestine, and that is where all the nutrients and minerals which has been broken down from the food is absorbed by the blood. हमारे intestine में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन इनफैक्ट में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, और वहाँ से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुके हैं वो ब्लड अब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाता है. तो अगर इंटेस्टाइन हमारा अफेक्ट होगा तो हमारी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से अफेक्ट हो जाएगी. डायरिया एंड डिहाइड्रेशन आर द सिम्टम्स. Preventive measures include maintain personal hygiene and good sanitary habits, consumption of properly cooked food and boiled drinking water, along with vaccination. Next is
typhoid, somewhat similar to cholera, but cholera is identified at a very later stage. Initially cholera is hidden. कॉलेरा का पता बहुत देर में चलता है. टाइफॉइड और कॉलेरा में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा जाएगा. रेफरेंस बुक्स आप मार्केट से उठाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया तो है, तो बैक्टीरिया का नाम भी दिया हुआ है, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा. एक आधा अगर आरएमएस में आया तो आया, पर उसके लिए आपको सभी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है. और इन जनरल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे. इट अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया. मेजर्स इंक्लूड मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. तो आप देख रहे हैं कि हाइजीन सभी में इंपॉर्टेंट है. कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन. Next is ascariasis. Ascariasis is basically caused by roundworms. Affects our intestine. You will see worms in stool, loss of appetite, poor growth, diarrhea, weight loss and anemia. Anemia is blood loss. Basically, the hemoglobin carries the oxygen. सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें अफेक्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें आयरन हमारा अफेक्ट हो जाता है. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट, द डिजीजेस स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज मलेरिया, caused by microorganism protozoa. It affects our skin and blood. High fever, profuse sweating and periodic chills. Use of mosquito nets and repellents, wearing long sleeved clothes, control of mosquito breeding in and around your home. Next is dengue fever. It's also called a break bone fever. Question पूछा जा सकता है. लास्ट ईयर डेंगी फीवर भी नहीं था और उसका नाम ब्रेक बोन फीवर दिया है, तो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. वायरस से होता है, अफेक्ट्स आवर स्किन एंड ब्लड. Fever, headache, muscle and joint pain along with nausea. Uses of mosquito nets and repellents, wearing long sleeved clothes, control of mosquito breeding in and around your home, avoiding areas with still water. तो stagnant water नहीं होने देना है, क्योंकि उसी पर ये जो वायरस होगा ये जर्मिनेट होगा. Now we can understand how infectious disease spread and how to prevent them. Here are some simple and important precautions. तो जनरली प्रिकॉशंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट यू नेवर नो, आपको मल्टीपल चॉइस में कुछ ट्रू फॉल्स में बनाकर दे सकते हैं. कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन, बहुत डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है समझने के लिए. practicing basic hygiene every day, again not a very scientific point, this is your common general knowledge. Washing hands with soap and water to remove pathogens. Covering our mouth and nose while coughing or sneezing. Wearing a mask in crowded places provides protection. Avoid sharing of personal items like towels and handkerchiefs. Keeping our home food and water clean. Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimizes spreading the diseases to others. Further, they say that some infectious diseases are caused by worms that live inside our body, especially in the digestive system. कुछ ऐसी बीमारियां बता रहे हैं जो worms से होती हैं, कीड़ों से होती हैं, हमारे digestive system को affect करती हैं और वहीं रहते हैं. They feed on nutrients and live as parasites. Parasites को define किया हुआ है, ये class 6 में भी हमने देखा है. Organisms that live in और ऑन अनदर लिविंग बीइंग. तो ये जो वॉर्म्स होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने लगते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सारा कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए इनको पैरासाइट कहा है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के अंदर या दूसरे पर रहते हैं. These worms usually spread through contaminated food, water, soil और contact with infected people or animals. So spreading की उनकी techniques बताई हुई है. Food से हो सकता है, water से हो सकता है, soil से हो सकता है, infected person से या infected animal से हो सकता है. So that was about communicable diseases. Now let's proceed to non-communicable diseases.
So after the communicable diseases, now let us discuss a very important reason I'm telling you very important is because in the old NCERT this point was not mentioned in detail, but this time they have mentioned in the detail. Non-communicable diseases, how are they caused? We have learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes, asthma, they are linked to lifestyle, diet and environment. हमने बात की है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, इट विल लीड टू सच नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. आपको ब्लड प्रेशर होगा, डाइट आप ठीक नहीं रखेंगे, प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा आप रिलाई करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स आप नहीं लेंगे, इस तरह की डिजीजेस के चांसेस बढ़ेंगे. इन्वायरमेंट आपका प्रॉपर सनलाइट वाला नहीं है, आप ज़्यादा मोबाइल पे आप टाइम स्पेंड, तो भी आपको इस तरह के डिजीज. देयर आर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया? आंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. बट जनरली हमारे दिमाग में ये पॉइंट नहीं आएगा. हम जनरली सोचेंगे कि भाई ज़्यादा डेथ तो मलेरिया से हो रही है, ज़्यादा डेथ तो डेंगू से हो रही है. बट दिस इज द मोस्ट कॉमन cause of death, that is non-communicable. In grade 6 we have learned about diseases like scurvy, anemia, goiter. ये जो सारे डिजीज हैं दे आर caused by lack of nutrients. स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है. एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है. गोइटर आयोडीन की कमी की वजह से होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बेरी विटामिन बी की कमी से होता है. So these are the diseases which are caused by lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency diseases, and they are also non-communicable. Diseases such as cancer, diabetes and asthma. बार बार इन तीनों पर फोकस कर रहे हैं और एग्जाम में तीन ही ऑप्शन आपके बन सकते हैं ये. They may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic diseases. तो chronic diseases मतलब जो लंबे समय तक चले. कितने लंबे समय तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रैकेट में दिया 3 मंथ से ज़्यादा हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान रखिएगा. 3 मंथ से ज़्यादा जो बीमारियाँ चल रहे हैं, जिनके आप कॉन्स्टेंटली आप मेडिकेशन ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, दे बिकम chronic diseases. These are the example. Next, let's discuss them. Diabetes. It is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. Question पूछ सकते हैं, which disease is becoming more prevalent in adults and children? Answer is diabetes. एक एक लाइन पर क्वेश्चन बन सकते हैं. In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. Very important point. इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में डायबिटीज के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं पूरी दुनिया में. It often develops due to a combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese. ये भी हमने डिस्कस किया. This is also a disorder and some other reasons also. तो ये सारे रीजन आपको दिए जा सकते हैं कि डायबिटीज क्यों हो सकता है. बट एक जनरल पॉइंट है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ईटिंग हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, ओवरवेट होना, यदि तो आप आंसर कर सकते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस विल बी अ न्यू पॉइंट एडेड हियर. So let us learn more about the causes of non-communicable diseases and their prevention. Again, a very important chart for you. The first is obesity. Sign and symptom नहीं दिया हुआ. Obesity मतलब आपके ज़रूरत से ज़्यादा आप मोटे हो जाते हैं. Suggested lifestyle changes will be eating a balanced diet and exercising regularly. Next is diabetes. Signs and symptoms are frequent urination, excessive thirst, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, weight loss, tiredness, slow healing. Slow healing मतलब अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी जो रिकवरी होती है, वो रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है. Next is high blood pressure. High blood pressure में mostly tiredness will be a common sign. Suggested lifestyle changes इन तीनों में लगभग सेम ही रहेंगे. डाइट ठीक करना, एक्सरसाइज करना. नेक्स्ट,
ये एक बहुत नया पॉइंट इस बार ऐड किया हुआ है बुक्स में, कई सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस साल तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, बट दिस ईयर कैन बी आस्क्ड। कमल Rana Dive, 1917 to 2001, was a pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमल राणा दिवे ने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज़ पर रिसर्च किया। तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि कैसे हार्मोन्स और वायरस कैंसर से रिलेटेड है, और रिसर्च करने के बाद इट हेल्प्ड इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो उसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में भी हेल्प की। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको, डाइट एंड पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि इन्होंने किस डिजीज के ऊपर काम किया, तो इन्होंने कैंसर के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस। You might have heard the phrase, prevention is better than cure. It is important to protect ourselves from both communicable and non-communicable diseases. Communicable जो पैथोजन से होंगे, पैरासाइट से होंगे, non-communicable जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं और लाइफस्टाइल डिजीज हैं। ओडिशा, वेरी गुड एग्जाम्पल। कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन, क्या किया इन्होंने इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओडिशा, अ कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प्ड मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स। तो उन्होंने बहुत सारे टॉयलेट बनाए टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग। दिस रिड्यूस्ड ओपन डेफिकेशन, डेफिकेशन होता है मतलब जब आप अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन, सिग्निफिकेंटली, एंड इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ विथ फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उड़ीसा में जो सैनिटेशन कैंपेन चला था उसमें कौन से डिजीज पर उनको हेल्प हुई, तो आंसर है डायरिया और जनरल एक इन्फेक्शन। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम दिस केस स्टडी। इस केस स्टडी से हम क्या मैसेज लेते हैं? मैसेज हम लेते हैं सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। और बात सही भी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, क्लीनलीनेस से आप बहुत उसको हद तक कम कर सकते हैं। Further, they say find about such community campaigns held in your location, share in your class and discuss with your peers। ये NCERT के टेक्स्ट बुक में इस तरह की बहुत सारी बातें दी हुई हैं कि ये आप भी ऐसा एक्सरसाइज करो और आप अपने क्लास में शेयर करो। Ability of the body to fight diseases, very important. You would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment। ये आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वेदर चेंज होता है तुरंत वायरल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जनरली तुरंत बीमार नहीं पड़ते अंटिल की बहुत सीवियर कंडीशन ना हो। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस, यहाँ पर ये पॉइंट वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Our body has a special system called immune system that helps fight against diseases। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल पैथोजन से, किसी भी इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट से वो फाइट करता है और डिजीज को वो प्रिवेंट करता है। You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases। तो हम सभी ने चाइल्डहुड पीरियड में कुछ न कुछ वैक्सीन्स, कुछ न कुछ मेडिसिन हमने ड्रॉप्स के लिए हैं, सच एज पोलियो, मीजल्स, टिटनस and hepatitis। These are the common ones। एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। These are vaccines that help prevent serious infections caused by viruses and bacteria। वायरस और बैक्टीरिया का नाम दिया है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वैक्सीन हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किस पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आंसर वायरस और बैक्टीरिया हो जाएगा। A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful agents। तो जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है फाइट करने के लिए। कुछ खास तरह के हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी को रेडी करती है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज acquired immunity, protection developed after exposure to a pathogen or a vaccine। Now what happens is, suppose आपको कोई
इन्फेक्शन हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई, आपने उसके लिए एक वैक्सीन ली, तो वैक्सीन पहले तो जो पॉजिटिव एजेंट है उसे मारेगा, और नेक्स्ट टाइम जब वही पैथोजन आपको दोबारा अटैक करेगा तो हमारी बॉडी रेडी होगी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, इट विल बी रेडी। और इसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब इट इज द प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। बेसिकली जो वैक्सीन होते हैं, इन वैक्सीन में हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का डेड या माइल्ड फॉर्म डाल देते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है हमारी इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और फ्यूचर में भी अगर वो डिजीज कॉजिंग एजेंट वापस हमारी बॉडी में आए तो उसे लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं। पैथोजन का दूसरा नाम एंटीजन भी होता है, और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है which will fight the antigens. Antigens are nothing but pathogens or disease causing agent. तो एक बार अगर आपने कोई वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन में एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ फाइट करेंगी, उस समय भी उसे खत्म करेंगी और आगे भी उसके लिए रेडी रहेंगी। नेक्स्ट, वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस लाइक वायरस और बैक्टीरिया। तो वैक्सीन बनाने का पहला और सबसे कॉमन जो तरीका है, हम वायरस और बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उसी के डेड फॉर्म्स या वीक फॉर्म्स हम यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। डेड फॉर्म्स लेते हैं और हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये डेड और वीक फॉर्म्स हैं तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी करने का काम करता है, वो इन डेड और वीकेंड पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना देता है, जो कि अब क्योंकि ये डेड हैं, ये तो लड़ नहीं सकते, तो इनको वो खत्म करता है और फ्यूचर के लिए भी वो इनसे लड़ने के लिए रेडी होता है, उनको खत्म करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए रेडी होता है। सेकेंड जो तरीका बताया, फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन। पैथोजेंस के इनएक्टिव जो पार्ट है उनसे भी वैक्सीन बन सकती है। Some newer vaccines instruct our body cells। कुछ अभी नई भी ऐसे वैक्सीन्स आ रही हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म विच आवर इम्यून सिस्टम देन लर्न्स टू फाइट। तो बेसिकली जो वैक्सीन का वर्क करने का तरीका है वो ये है कि जो पैथोजेंस हैं उसके वीक फॉर्म्स हम बॉडी में डाल देंगे। जैसे ही उनके वीक फॉर्म बॉडी में डालेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करेगा, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, और फ्यूचर में भी उनसे कैसे उनको ख़त्म करना है, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनानी है उसके लिए रेडी रहेगा। इंस्ट्रक्शन गिविंग टू बॉडी सेल्स, इसका एग्जाम्पल है टेटनस शॉट। एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है। इट्स ऑफन गिवन आफ्टर एन इंजरी, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। तो जब भी आपको इस तरह की कोई वुंड लग जाती है, चोट लग जाती है, तो टेटनस का शॉट हम देते हैं ताकि इंजरी के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिले। 3 यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं वैक्सीन बनाने के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि वैक्सीन बनाने का इसमें से कौन सा तरीका है। तीनों ऑप्शन दे देंगे, 1 और 2 ऑप्शन दे देंगे, फिर 2 और 3 दे देंगे, 1 और 3 दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच। तो सारे ही पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन that helps the immune system develop protection without causing the disease। टिटनस शॉट की बात चल रही है कि जैसे ही आप टिटनस शॉट देते हैं तो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करे। टॉकिंग अबाउट एडवर्ड जेनर, ओल्ड एनसीईआरटी से लिया हुआ कॉन्सेप्ट, अभी भी इसमें है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? इट वाज डन बाय
Edward Jenner and the smallpox vaccine. Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. A milder disease called cowpox seen in cows could also infect humans. क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली वैक्सीन किसने डेवलप की, दूसरा कौन से डिजीज के अगेंस्ट डेवलप की, तीसरा उसका एनिमल्स में सिमिलर फॉर्म क्या है काउपॉक्स, एंड फोर्थ कैन काउपॉक्स विच इज अ कॉमन डिजीज कैन इट ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस. चारों ही कंफ्यूजन कुछ कंफ्यूजिंग है. एडवर्ड जेनर तो खेल लीजिए, आप आंसर कर दोगे. स्मॉल पॉक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, काउपॉक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा. लेट अस नाउ डिस्कस अ लिटिल बिट मोर. एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. इन द लेट 1700s, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. उनको देखा कि जिनको cowpox हो जाता है, cowpox जनरली माइल्डर फॉर्म है, उनको smallpox नहीं होता. And this led to the invention of the first vaccine and helped protect people from smallpox. तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को cowpox हो रहा था उनके अंदर से उन्होंने थोड़े से इन्फेक्शियस पैथोजेंस निकाले, क्योंकि cowpox वीक फॉर्म था, और उसके बाद जिन भी लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया था या नहीं भी हुआ था उनको दे दिया. अब उनकी बॉडी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट रेडी हो गई. एंड दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन. आवर साइंटिफिक हेरिटेज लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स, इंडिया had a traditional method called variolation to protect against smallpox. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्सीन से पहले इंडिया में क्या यूज होता था स्मॉल पॉक्स के लिए, तो वेरियोलेशन यूज होता था. देखते हैं व्हाट इज वेरियोलेशन. इट इन्वॉल्व्ड यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर. स्मॉल पॉक्स सोर मतलब आपने देखा कि वो बता रहे थे कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते थे, तो उन्हीं ब्लिस्टर्स में से ये थोड़ा सा मटेरियल निकाल लेते थे टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी. वेरियोलेशन में हम क्या करते थे, स्मॉल पॉक्स में से छोटा सा हमने पार्ट निकाला, अपनी स्किन को स्क्रैच करके और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उससे हमें माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद हमें इम्यूनिटी मिल गई. पीपल हु परफॉर्म्ड प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वेरियोलेशन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, टीकेदार कहा जाता था. खैर सिंपल है, इसको बहुत डिफिकल्टी नहीं है. ऑप्शन में अगर 4 में रहा तो अब टीका, आपको पता है हिंदी में वैक्सीन को टीका बोलते हैं, टीका लगाना, तो टीकेदार उनको कहा जाता था. वेरियोलेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Now how did he come to this discovery? Jenner observed that milkmaid who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. ये cowpox और smallpox के जो वायरस थे ये आपस में रिलेटेड थे. ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिनको cowpox होता है उनको smallpox नहीं होता. इससे उन्होंने क्या assumption लिया, that content in the pus of cowpox blisters protected people from smallpox. तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जिनको काउपॉक्स है, इसका मतलब जिनके अंदर काउपॉक्स के पैथोजेंस हैं, वही पैथोजेंस उन्हें स्मॉल पॉक्स से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काउपॉक्स माइल्ड फॉर्म में आया है उनके अंदर, और माइल्ड फॉर्म में है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है. इसीलिए उन्होंने उनको जो सीरियस स्मॉल पॉक्स के वायरस हैं वो भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. Now what he did a basic experiment. आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उन्होंने इंजेक्शन बनाया. He tested this by injecting cowpox sap. sap का मतलब होता है जो लिक्विड टाइप का होता है, cowpox का जो इन्फेक्शियस पार्ट होगा, उन्होंने इंजेक्ट किया into a boy who later showed no illness when exposed to smallpox. तो जब उन्होंने cowpox का इन्फेक्शियस पार्ट उस बॉय को दिया तो उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. रिजल्ट ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स. जिनको एक बार काउपॉक्स हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर काउपॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाती है, और उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स भी उनको इफेक्ट नहीं करता. और क्योंकि मिलियंस ऑफ डेथ, तो मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, 6th-7th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको भी पूछा जा सकता है कि क्या स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से इरेडिकेट मतलब खत्म करना कर दिया जा चुका है. सो यस, दिस इज द आंसर. स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. अब ये बीमारी किसी को भी नहीं होती है. इसको बनाने के लिए छोटा सा इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है. You can see that
countries reporting smallpox from 1950 to 1980. दिस इज नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग केसेस है, 80 कंट्रीज हैं और आप देख सकते हैं ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है. 1979 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह इरेडिकेट कर दिया है. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में इसको पूरी तरह खत्म कर दिया. 1979 में खत्म कर दिया. कैंपेन कब हुआ? 1965 में. और दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक में जितने भी छोटे छोटे डायग्राम्स हैं उन सभी से क्वेश्चन बन सकता है. Next, vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages. क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वैक्सीन छोटे बच्चों में भी काम करेगी, एडल्ट्स में भी काम करेगी, एल्डरली में भी काम करेगी? आंसर इज यस, सभी में काम करेगी. फ्रॉम इन्फेंट्स टू द एल्डरली अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीजेस. They help prevent illnesses, they reduce the spread of infections and save millions of lives every year. क्वेश्चन बन सकता है वैक्सीन प्रिवेंट इलनेस? यस. दे रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? यस. तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ इलनेस से ठीक तो कर सकता है लेकिन इन्फेक्शन को कम कर सकता है? यस, वो भी दोनों काम ये कर सकता है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव, दे आर नॉट क्यूरेटिव. दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन. तो वो प्रिवेंटिव हैं, मतलब उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. क्यूरेटिव मतलब ठीक नहीं कर सकते. बट दे डू नॉट ट्रीट देम व्हेन समवन इज ऑलरेडी सिक. अगर किसी को ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है तो उसे वो ठीक नहीं कर सकते. नहीं हुई है तो उसे वो मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन्स, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी. कई लोगों को वैक्सीन से डर भी लगता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट बिफोर अ वैक्सीन इज लॉन्च्ड या बिफोर किसी वैक्सीन को ऑफिशियलाइज किया जाता है उससे पहले वो टेस्ट किया जाता है. Getting vaccinated not only protects you but also the people around you. तो वो आपको भी प्रोटेक्ट करती है और आपके साथ साथ भी आसपास जो लोग हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है. क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि अगर हमने वैक्सीन ली तो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी प्रोटेक्ट होते हैं. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स. क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया? तो वैक्सीन का लार्जेस्ट. इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मेनी कंट्रीज. इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड दे कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स. तो डायबिटीज में नंबर 1 और वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आगे चलेंगे, एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. 200 करोड़ वैक्सीनेशंस. Make in India vaccines for the world. 24 crore doses supplied to over 100 countries under Vaccine Maitri. पूछो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्या नाम था कैंपेन का? वैक्सीन मैत्री. 100 कंट्रीज में 24 करोड़ डोजेज हमने सप्लाई किए किसके? कोविड-19 के. नेक्स्ट, डॉक्टर महाराज किशन भान was a well-known Indian doctor and scientist. As Secretary of Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर महाराज किशन भान क्यों फेमस थे? तो वो साइंस को प्रमोट करने के लिए और इनोवेशन के लिए वो फेमस थे. साथ साथ में इन्होंने रोटा वायरस की वैक्सीन बनाई. He played a key role in developing the rotavirus vaccine. क्वेश्चन पूछ सकते हैं रोटा वायरस वैक्सीन किसने? चांसेस कम है बट स्टिल यू शुड नो. विच प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया. बच्चों को डायरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन उन्होंने बनाई. He believed in using research to create affordable health and made a big difference in India's healthcare and biotechnology sector. तो इनके रिलेटेड ये चीज़ हो गई कि ये डायरिया की डिजीज को इन्होंने काम किया. कौन से वैक्सीन के? रोटा वायरस वैक्सीन इन्होंने बनाया. कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस, इफ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर. कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स which kill the bacteria that might have caused the disease. तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं
जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग एजेंट को किल कर देता है। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एंटीबायोटिक वायरस को मार सकता है? आंसर इज नहीं मार सकता। वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करेगा, बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल्स। अब वायरस पर ये काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वायरस जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आएगा या ह्यूमंस के अंदर आएगा तो वो ह्यूमंस को ही अपना होस्ट बना लेता है। वो डिफर अलग नहीं होता, वो ह्यूमंस के सिस्टम में किसी के भी, वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल सेल्स पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो ह्यूमन से अलग होते हैं या किसी भी एनिमल सेल से अलग होते हैं। इस पर भी पार्ट फोकस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी चांसेस रहेंगे। फर्दर, he realized the mold released a substance that killed the bacteria. This chance discovery led to the discovery of penicillin. It is the first antibiotic used to treat bacterial infection. तो पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन में भी हमने क्या किया, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था उसी का माइल्ड फॉर्म एज अ इंजेक्शन हमने इंजेक्ट किया। जो स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स की स्टोरी थी उसी के बेसिस पर पेनिसिलिन बना। चलिए लेट अस गो अहेड एंड लुक एट द स्टोरी। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928, ईयर भी पूछ सकते हैं, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दिस इज द पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंडन। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कहाँ से थे? लंदन से थे। While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक्चुअली एक कल्चर बनाया। कल्चर में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उन्होंने रख दिए और सडनली उन्होंने नोटिस किया कि उसी डिश में, एक छोटे सा एक प्लेट जैसा आप समझ लो, उसी प्लेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहे थे। एंड फ्रॉम दिस ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस and has saved millions of lives since their discovery, their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. Very important point, आगे इसको डिटेल में बताया भी है। यार है कि एंटीबायोटिक्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन अगर आपने उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट वे में यूज किया, जिस थोड़ा सा भी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तुरंत आपने मेडिसिन खा ली, तुरंत आपने टैबलेट खा ली, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कम होती जाएगी। और इसी पर जो आजकल काफ़ी बात चल रही है, नाउअडेज देयर आर न्यू हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गया है। So we understand here that an uncalculated use of antibiotics will eventually reduce or decline their effectiveness. अगर आप बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ओवर द टाइम आपको एक सेम डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी और हो सकता है कि उसका इफेक्ट भी ना हो। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज अ न्यू हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. It is a phenomena where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. कह रहा है कि पहले जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो जाते थे, अब वो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, अब ये एंटीबायोटिक उन्हें किल नहीं कर पा रहा है और अब ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, मतलब और ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं. आप एंटीबायोटिक लें तो उसके बावजूद, क्योंकि उन्होंने उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया, मतलब उससे लड़ने की एबिलिटी डेवलप कर ली. दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. और अगर ऐसा रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया
तो अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट में ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ. Let's understand through a basic diagram that how it is spread. In this diagram here we can understand how antibiotic resistance spreads in a community. Let's first talk about animals. If we take antibiotics when they are not required, it will lead to development of resistance in the bacteria in animals. तो अगर आप जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेंगे तो धीरे धीरे ये एनिमल के अंदर, मतलब बेसिकली अगर आप एनिमल्स को दे रहे हैं जब जरूरत नहीं है तब भी दे रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे एनिमल्स के अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे. अब इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. ना एनिमल से हम एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जैसे बटर है, एग्स है, मिल्क है, ये कंज्यूम करेंगे, और जब हम ये फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे तो ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर जाएंगे. आपके अंदर एंटर हो गए तो टच से और वेरियस अदर मेजर से ये आपकी फैमिली में, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में फैल जाएंगे. एनिमल्स के थ्रू और क्या हो सकता है? एनिमल्स के थ्रू दिस बैक्टीरिया विल स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप एंड एनिमल फीसेस. अब गाय का गोबर वगैरह है, गाय के गोबर में भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है. अब अगर आपने उस गोबर को एज अ मैन्योर यूज किया अपने फील्ड्स में, तो जो क्रॉप बनेगा उस क्रॉप में भी ये बैक्टीरिया पहुंचेंगे, और जब उस क्रॉप में तो जब हम उस खाएंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, हमारी सराउंडिंग में फैल जाएंगे. एक्सप्लेन्स हाउ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. क्रॉप्स को जब आप कंज्यूम करोगे बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगा. अगर आप एनिमल्स को दे रहे हो तो एनिमल्स क्रॉप्स तक कैसे पहुंचाएंगे? अपने मैन्यूर के थ्रू पहुंचा देंगे. अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क है, एग है, मीट है, इनको कंज्यूम करोगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर लेते हैं तो पहला तो आप सीरियसली इल हो सकते हैं. जब आप इल होंगे आप हॉस्पिटल जाएंगे. हॉस्पिटल आप जाएंगे, आप जिन भी लोगों को टच करेंगे, दूसरे पेशेंट्स के साथ रहेंगे, उनमें ये बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे. हेल्थ वर्कर्स जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर हैं, वो ये होंगे. फिर होकर घर आएंगे तो आप अपनी फैमिली में ये बैक्टीरिया फैलाएंगे. So they mention here about the spread of the resistant bacteria in both through animals and their own actions. खुद आप ज़्यादा ले रहे हो या जानवरों को आप ज़्यादा दे रहे हो तो इसके थ्रू भी resistant bacteria. Now how do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? कैसे ये डेवलप हो रहा है? What precautions may be taken to reduce antibiotic resistance? And how do we tackle the problem of antibiotic resistance? इसको कैसे हम सॉल्व करें? सॉल्व करने के लिए सिंपल टेक्निक है, वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक्स वाइजली ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर. तो जब तक आप बोले हमें खुद से फार्मासिस्ट के पास गए, हमें एंटीबायोटिक दे दो, बुखार लग रहा है, नहीं करना है ऐसा. सेकेंड, यू शुड यूज इन द क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें लेना चाहिए. बिना डॉक्टर के कहे नहीं लेना चाहिए, करेक्ट डोज में लेना चाहिए, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन. डॉक्टर ने कहा 1 वीक तक लेना है तो 1 वीक तक ही लेना है, उसको 2 वीक 3 वीक आप मत खाइए. अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प्स प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड कीप्स एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशंस. अगर एक बार आपके अंदर ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए तो फ्यूचर, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन बनेंगी उनके अंदर भी ये काम नहीं करेगा, उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे. अननेसेसरी यूज आप बंद कर देंगे तो आप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, और इससे ये जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं ये इफेक्टिव आपके अंदर भी रहेंगी, फ्यूचर जनरेशन में भी रहेंगी. ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है. तो सिद्धा है, आयुर्वेदा है. कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, they use natural substances like herbs, oils and minerals for managing illness and promoting recovery.
एंड दे फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ बैलेंस डाइट। तो पूछ सकते हैं कि हमारा जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने की जो मेडिसिन सिस्टम है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या हम करते थे? उसमें ऑयल यूज़ करते थे, हर्ब्स यूज़ करते थे, मिनरल्स यूज़ करते थे रिकवरी के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए। लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट को हम लेते थे। वाइल दीज सिस्टम्स कैन हेल्प विद सम कंडीशंस एंड आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग, they may not be effective for all diseases and at all stages. तो ये जो मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये थोड़े बहुत तो काम के थे, लेकिन ये हर एक बीमारी पर और हर एक स्टेज पर काम नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस इनकी नहीं थी। थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स and improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation। तो बात कर रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा? इनको बेसिकली दवाइयों से मैनेज किया जाएगा, लाइफस्टाइल चेंजेस से, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना है, टाइम पे सोना है, बैलेंस डाइट लेनी है, इससे हम इसको ठीक करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंडीशंस केयर, continuous care are key to control the disease's progression and they prevent complication। अर्ली डायग्नोसिस मतलब अगर आपने इस तरह की बीमारियों को पहले पहचान लिया, जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बहुत ही एंड में होता है। जब तक पता चलता है तब तक ऑलरेडी पेशेंट 4th 5th स्टेज पर पहुंच जाता है, और वहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई करें तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अर्ली डायग्नोसिस की बात हो रही है कि अगर आप पहले ही पहचान लें कि ये, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से कम हो जाते हैं। नाउ हियर इन दिस डायग्राम दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट, अ फ्यू माइक्रोब्स। अब जब ये थोड़े से, आई कैन सी आउट ऑफ दिस रेड वन हैज डेवलप्ड द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट हैपेंस, अब अगर इसके बाद भी अगर आप एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स विल किल बैक्टीरिया, and antibiotics does not know what are good bacteria, what are bad bacteria. There are some good bacteria also present in our body. तो एंटीबायोटिक्स दोनों को मारेंगे, और जब ये गुड बैक्टीरिया को मारेंगे तो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। लेकिन अब एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज को भी मार रहे हैं, इसीलिए वो ओवर द टाइम इनइफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले बैक्टीरियाज को तो खत्म कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उसे ये एंटीबायोटिक्स नहीं मार पा रहे, तो धीरे धीरे अब ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं इन द थर्ड, ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। और इसके बाद आप कितने भी एंटीबायोटिक्स खाते रहिए, अब इसका कोई असर नहीं होने वाला। इन सम केसेस डेथ भी हो सकती है। नाउ सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ट्रांसफर द रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया? आंसर इज यस, दे कैन ट्रांसफर। वो रेजिस्टेंस को दूसरे बैक्टीरिया पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिवेंशन क्या क्या है? पिक्चर में बताया, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड फीवर। फार्मासिस्ट के पास जाकर ये एंटीबायोटिक्स मांग रहा है, तो व्हाट इज रिप्लाई इज, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। कह रहा है बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक योर कैटल? दिस पर्सन इज आस्किंग दिस लेडी, बिकॉज हमने देखा कि ये प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स से भी हो सकते हैं, ह्यूमन से भी फैल सकते हैं। तो अगर आप एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो वहाँ से भी आपके अंदर आ सकते हैं। So the lady is replying, no, I am not using any antibiotics. So it means the product by this cow, इसका जो मिल्क है, जो बटर है, वो safe for use है। Third, no, do not give antibiotic injection to your cattle. तो cattle है, उन्हें एंटीबायोटिक का इंजेक्शन नहीं देना otherwise. Health means complete physical, mental and social well-being. Not just the absence of disease. Just summarizing what we have discussed, being happy helps us stay active and healthy, and good health also improves our mood. Health and happiness are closely
or what can be seen or measured like fever or rash. दोनों में डिफरेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है. जिसको मेजर किया जा सकता है उसे साइन कहेंगे, जो हम फील कर उसे सिम्टम कहेंगे. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, दे आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉट जर्म्स. ये जर्म्स से नहीं होते, ये पैथोजन से नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होते हैं. They can often be prevent healthy habits, lifestyle changes and regular exercise. So we can prevent this non-communicable diseases by some basic changes, diet changes, basic physical activity. Infectious diseases are caused by pathogens like bacteria, viruses or worms. Our immune system helps protect us from harmful pathogens. Infectious disease जो हो सकते हैं ये इस तरह के पैथोजन से होंगे और इन पैथोजन्स के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन हमारा इम्यून सिस्टम करता है. वैक्सीन train the immune system using dead, weakened or harmless parts of germ to prevent diseases. वैक्सीन क्या करते हैं? वैक्सीन आर बेसिकली नथिंग बट डेड एंड वीकेंड फॉर्म और हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म्स, जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है और फ्यूचर के लिए भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीजेस. डायग्नोसिस मतलब पहचान करना, ट्रीटमेंट उसकी कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना. इसी से हम किसी भी डिजीज़ को मैनेज करते हैं, क्योर करते हैं. इस चैप्टर से सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, नवोदय में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. क्वेश्चन कैसा होगा? किसी भी एक स्टेटमेंट से उठा लिया जाएगा. मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन बेस्ड हो सकता है. कम से कम 8 से 10 बार आप इस वीडियो को रिवाइज करिए.